وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ابھی یہ ایک ایسا ماہ تھا جہاں سب بچوں اور بچیوں کو اسکول اور کالجز کی چھٹیاں تھیں، اور تقریباً ہر جگہ اب چند دنوں میں اسکولز اور کالجز کھلنے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، جہاں بچوں کے لیے یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات تھی کہ جو ہے نا چھٹیاں آ گئی ہیں اور ہمیں جو ہے اب مکمل آرام سے رہنا پڑے گا، اتنا ہی زیادہ والدین کے لیے یہ فکر مندی کی بات تھی. کیونکہ والدین کو جو ہے بچوں کے مستقبل کی بہت فکر تھی. اچھا، ہمارے بچے نے جو ہے 10th مکمل کر لیا ہے، اب اس کے بعد کون سی کالج جائے گا؟ اچھا، ہمارے بچے نے اتنے سال اسکول میں کاٹ دیے ہیں، اب آگے اسی اسکول میں پڑھاؤں یا دوسری اسکول میں پڑھاؤں؟ اس کی فکر جو ہے نا والدین کو مکمل چھٹیاں اور بالخصوص ان دنوں میں مکمل پریشان کر کے رکھ رہی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ والدین جو ہے ان دنوں میں اپنے بچوں کو ایک بہترین اسکول، ایک بہترین کالج میں ایڈمیشن دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بس کیسے بھی میرے بچے کو جو ہے فلاں بڑی اسکول میں، فلاں بڑی کالج میں جو ہے نا ایڈمیشن مل جائے. اس کے لیے میں کتنی ہی محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے قرض لینے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے جو ہے نا میں مزید کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، کیسے بھی میرے بچے کی جو ہے نا دنیا سنور جائے. میرے بھائیوں، یہاں میں رک کر والدین سے سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ فکر، یہ تڑپ، یہ دنیاوی تعلیم دینے کے لیے اتنی جستجو اور جو ہے نا دینی تعلیم سے متعلق بالکل بے شعوری، یہ عالم جو ہے ہمیں مکمل طور پر والدین میں دیکھنے کو مل رہا ہے. اسکولز اور کالجز کے لیے مکمل تحقیقیں چل رہی ہے، مہینے مہینے اس کے پیچھے جو ہے نا لگائے جا رہے ہیں. وہی جب جو ہے نا مدرسے کی بات آتی ہے، وہی اللہ کے کلام کی بات آتی ہے، وہی احادیث کی بات آتی ہے، سیرت رسول کی بات آتی ہے. ہمارے بچے کو نماز نہیں پڑھنا آتا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بڑے سے بڑے ڈگری کالج میں جو ہے نا مجھے ایڈمیشن چاہیے. اس کی کوئی فکر نہیں کہ جو ہے نا میرا بچہ جو ہے نا دینی اعتبار سے کتنا زیادہ کمزور ہے، کتنا زیادہ جو ہے نا مکمل طور پر دینی تعلیم میں رہ رہا ہے. مسئلہ نہیں، لیکن میں اسے مکمل طور پر قوت دینا چاہتا ہوں صرف اور صرف دنیاوی تعلیم میں. میرے بھائیوں، یاد رکھ لیجئے یہ بات، والدین کو یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے کہ اگر وہ مکمل طور پر دنیاوی تعلیم میں سب سے اعلیٰ ڈگری بھی اپنے بچوں کو دے دیں گے اور دینی تعلیم میں ان کا بچہ کمزور رہے گا، دین کیا ہے اسے پتا نہیں، اللہ کیا ہے اسے پتا نہیں، اللہ کے نام کیا ہے اسے پتا نہیں، نماز کیسے پڑھنا پتا نہیں، ایک سورہ اسے یاد نہیں، تو یاد رکھ لیجئے تعلیم اسے نہ دنیا میں کامیاب بنا سکتی ہے نہ آخرت میں کامیاب بنا سکتی ہے. ہم یہ خوش فہمی میں زندگی گزارتے ہیں کہ جو کم از کم میری بچے کی دنیا تو سنور جائے گی. نہیں، وہی بچہ جس کے لیے آج آپ محنتیں پڑھ رہے ہیں، وہی بچہ آپ کو گھر سے باہر کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے آپ کی قدر نہیں پتا، کیونکہ اسے آپ کی اور جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر نہیں پتا. اگر میں یہ کروں گا تو مجھے کیا حشر ہوگا کل قیامت کے دن، اسے بالکل نہیں پتا. تو میرے بھائیوں، یہاں
والدین کو جو ہے ہوش کے ناخن لینا چاہیے. والدین جہاں جو ہے اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم سے متعلق اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں, اتنی جستجو ان کے اندر ہے, یہ تڑپ, یہ شوق اور یہ محنتیں جو ہے نا مکمل طور پر انہیں دینی تعلیم میں بھی دکھانا چاہیے. جب تک وہ یہ نہیں کریں گے ان کے بچوں کے اندر وہ سدھار اور جو ہے نا ان کے بچوں کے اندر وہ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر وہ نہیں آئے گا. میرے بھائیوں, اس امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل کیا ہوئی تھی؟ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کے لیے پہلا پیغام دے رہے ہیں. اللہ کی طرف سے پہلا میسج ہے اس امت کے لیے, کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. میرے بھائیوں, یہ آیت جو ہے نا صرف اور صرف ہمیں جو ہے دنیاوی تعلیم پڑھانے اور دنیاوی تعلیم میں ہمارے بچوں کو آگے بڑھانے کے وقت یاد آتی ہے, جبکہ یہ آیت کا اصل مقصد کیا تھا نازل ہونے کا؟ قرآن پڑھانے کے لیے, احادیث پڑھانے کے لیے, شریعت کی تعلیمات پڑھانے کے لیے. لیکن یہ آیت جو ہے نا ہمیں مکمل وہاں جو ہے نا بالکل یاد نہیں آتی. ہم جو ہے اس آیت کا استدلال بھی جو ہے نا نعوذ باللہ صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کے لیے استعمال کرتے ہیں. اقرا, ہاں کالج پڑھائیں گے, اقرا ہم جو ہے اسکول پڑھائیں گے. کیوں؟ ہماری شریعت جو ہے نا مکمل طور پر تعلیم جو ہے نا تربیت کی طرف مکمل طور پر ابھارتی ہے. اس وجہ سے جو ہے نا ہم ہمارے بچے کو جو ہے نا مکمل بڑی سے بڑی ڈگری دلائیں گے, بڑے سے بڑا ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے. میرے بھائیوں, اسلام اس سے روکتا نہیں ہے آپ کو. اسلام کہتا ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھے, لیکن دینی تعلیم کو پیچھے چھوڑ کر, دینی تعلیم کو مکمل طور پر ترک کر کے نہیں. میرے بھائی نہیں, اگر ہم اس طرح کریں گے تو گویا کہ والدین اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جو ہے نا جہنم رسید کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھ لیجئے, اگر ہم جو ہے ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے متعلق فکر نہیں کر رہے ہیں, صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کے نشے میں اتنا زیادہ مگن ہو گئے ہیں کہ ان کا دین مکمل طور پر برباد ہو رہا ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں. ہم جو ہے صرف اور صرف کیسے بھی جو ہے نا یہ دنیاوی تعلیم کے منازل جو ہے نا طے کرنا چاہتے ہیں, تو یاد رکھ لیجئے یہ چیز جو ہے نا ان کو دنیا میں بھی مکمل طور پر خاکسار کرے گی اور آخرت میں تو ان کا جو ہے نا انجام کچھ اور ہی ہوگا. آج والدین کا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ جو ہے نا کیسے بھی جو ہے نا بڑی سے بڑی اسکول میں میرے بچے کو ایڈمیشن مل جائے, وہ کیسے بھی جو ہے نا وہاں جا کر پڑھ لے, اسے قرآن نہیں آتا, اس کو جو ہے نماز پڑھنا نہیں آتا, وہ ایگزام ہے تو جو ہے نماز چھوڑ دے, ایگزام ہے تو جو ہے نا مکتب جانا چھوڑ دے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. بعض والدین تو ایسے ہیں ایسے اسکولوں میں جو ہے نا اپنے بچوں کا داخلہ کراتے ہیں جہاں پر جو ہے نا بائبل تک پڑھائی جاتی ہے, اور وہ جو ہے نا دین سے مکمل طور پر سودا کرنے کے لیے تیار ہیں. بس کیا کیسے بھی ان کا بچہ اتنا قابل بن جائے کہ وہ 2 روٹی گھر لے کر آ جائے, بس اس دنیا کے لیے, بس اس دنیا کے لیے اتنی دیوانگی کے حد تک اتر گئے ہیں والدین کہ جو ہے نا ایسی اسکولز اور کالجز جہاں پر جو ہے نا کوئی دینی ماحول نہیں, صرف اور صرف جو ہے نا ویسٹرن کلچر اور جو ہے نا مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کو مسخ کر کے جو ہے نا وہاں دنیا سکھائی جا رہی ہے. کوئی سے بھی دنیا سیکھ لے اور جو ہے نا میرا بچہ اس دنیا میں کامیاب ہو جائے اور اس کے ذریعے جو ہے نا چند پیسے گھر کو لے کر آئے, یہ برداشت ہے انہیں, یہ مکمل طور پر اس کے لیے راضی ہے, مکمل طور پر دین کا سودا کر کے جو ہے نا اپنے بچوں کو دنیا پڑھا رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے بتایا کہ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری امت کو جو پہلا پیغام یہی دیا ہے, اقرا, پڑھو, اور وہ پڑھنے سے مراد واللہ بتا رہا ہوں صرف اور صرف اور صرف دینی تعلیم. اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے, اسلامی تعلیمات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. یہ جو ہے نا اقرا سے متعلق ہے. اس کے بعد جو ہے نا دنیاوی تعلیمات ہے, اس کے بعد جو ہے نا اصلی تعلیمات ہے, سب سے پہلے دینی تعلیم. اور یہ دینی تعلیم ہی جو ہے نا اس پرفتن دور میں آپ کے بچوں کے لیے ڈھال بنے گی. یہ دینی تعلیم ہی آپ کے بچوں کے لیے جو ہے نا اس پرفتن دور میں سہارا بنے گی. میرے بھائیوں, فتنوں کے لیے آج جو ہے نا باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھروں تک چل کر آ رہے ہیں. آپ کے بچوں تک, آپ کے بچوں کے کمروں تک جو ہے نا فتنے چل کر آ رہے ہیں. ایسے دور میں جو ہے نا اگر آپ کے بچے کے پاس دین نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے, تو سمجھ لیجئے جو ہے نا اس پرفتن دور میں جو ہے نا ہم ہمارے بچے کی حفاظت نہیں کر سکتے. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ہمارے بچوں کی حفاظت کر سکیں. کوئی اگر جو ہے نا ہمارے بچوں کی حفاظت کر سکتا ہے
कोई हमारे बच्चों को जो है ना मुकम्मल तौर पर फितरों और जो है ना फसादात से रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम। एक हदीस में आप लोगों को सुनाता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि जो है ना ये दीनी तालीम कितनी अहम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इस हदीस में कि जो है जो कोई जो है इल्म हासिल करने का रास्ता इख्तियार करते हैं, जो कोई इल्म दीनी इल्म हासिल करने का रास्ता इख्तियार करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। इस हदीस को अगर हम बारीकी से समझेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि जो है ना जन्नत का रास्ता जो है ना बहुत मुश्किल है। जन्नत का रास्ता आसान रास्ता नहीं है, जन्नत का रास्ता बहुत मुश्किल है। अगर उसे कोई चीज आसान कर सकती है तो क्या है? सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम। रसूल की जुबानी आप सुन लीजिए बात, रसूल कह रहे हैं कि अगर जो है ना तुम्हें जन्नत का रास्ता आसान करवाना है, अगर तुम चाहते हो कि जो है ना तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारा भी जन्नत का रास्ता आसान हो जाए तो उन्हें दीनी तालीम दो, उन्हें दीन सिखाओ, क्योंकि यही दीनी तालीम जो है ना उनके अंदर जो है मुकम्मल तौर पर क्या पैदा करेगी? इबादतों का शौक पैदा करेगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर पैदा करेगी, जिसकी वजह से उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। मेरे भाइयों, कितने लोग ऐसे हैं जो साफ तौर पर कहते हैं कि मैं नेक बनना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं बन सकता, मुझे जो है ना कोशिश कर रहा हूं लेकिन पीछे हट जाता हूं, मैं गुनाहों को छोड़ना चाहता हूं लेकिन नहीं छोड़ पा रहा हूं। वजह क्या है? यही दीनी तालीम की कमी, यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तक़वे की कमी, यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के डर की कमी। उन्हें नहीं पता है कि कुरान क्या है, उन्हें नहीं पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, उन्हें नहीं पता कि सहाबा क्या थे, जिसकी वजह से जो है ना उनके लिए जो है ना हर गुनाह आसान हो गया है और हर नेकी मुश्किल हो गई है। अगर हम दीनी तालीम हासिल कर लेंगे, अगर हमारे अंदर जो है ना दीनी तालीम हासिल करने का जो है ना शौक भी आ जाएगा तो क्या होगा? हमारे अंदर जो है ना मुकम्मल तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर आ जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ आ जाएगा। मुकम्मल तौर पर जो है ना उसके बाद जो है ना हमारे लिए हर नेकी आसान हो जाएगी और हर गुनाह जो है ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बस वजह क्या है उसकी? हमें दीनी तालीम हासिल करना चाहिए, खूब जो है ना दीनी तालीम हासिल करने की तरफ तवज्जो देना चाहिए। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रिवायत में क्या फरमाया? मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसके ताल्लुक से खैर का इरादा करता है, जिसको जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला खैर देना चाहता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे दीन की समझ अता करते हैं, दीन की समझ अता करते हैं। इस हदीस को रखकर इमाम इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। इमाम इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर किसी के पास दीनी तालीम नहीं है तो इसका मतलब अल्लाह ने उसके साथ खैर का इरादा नहीं किया है, अल्लाह ने उसके साथ खैर का इरादा नहीं किया है, अल्लाह ने उससे खैर को मुकम्मल तौर पर दूर रखा है, बल्कि खैर को उससे छीन लिया है। सुभान अल्लाह। आप सोचिए कि जो है ना हम ये दुनियावी तालीम और ये दुनियावी चमक धमक को खैर समझते हैं, जबकि खैर क्या है? सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम में खैर है, दीनी तालीम ही में खैर है। दीनी तालीम के साथ अगर जो है ना आपके बच्चों के अंदर जो है ना दुनियावी जो है तालीम भी आ जाएगी, दुनियावी डिग्रियां भी आ जाएगी, तब वो खैर है। अगर सिर्फ दुनियावी डिग्रियां आ रही है तो जो है ना बाई से खैर नहीं है, वो चीज जो है ना मजम्मत वाली चीज है, वो चीज जो है ना बहुत बुरी चीज है। क्यों? क्योंकि जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके साथ खैर का इरादा नहीं कर रहा है। मेरे भाइयों, बड़ी से बड़ी डिग्रियां मिल जाए, बड़ी से बड़ा जो है ना मुकाम मिल जाए दुनिया में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है ना हमारे साथ खैर का इरादा नहीं किया है, तो कौन कामयाब हो सकते हैं इस दुनिया में? किसके अंदर इतनी ताकत है कि अल्लाह के खैर के बगैर जो है ना एक कदम भी जो है ना कामयाबी का चढ़े? किसी के अंदर जो है ना इतनी ताकत नहीं है। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, बियदिकल खैर, खैर जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ पे है, सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर जो है ये चीज पैदा हो कि जो है ना वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरे और उनकी भी झोली जो है ना मुकम्मल तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खैर से भर जाए, तो हमें जो है ना उनको दीनी तालीम से आरास्ता करना चाहिए, उन्हें दीन सिखाना चाहिए, उन्हें कुरान और हदीस सिखाना चाहिए। और वो चीज जो है ना हम एहसास दिलाने से पैदा होगी। हम जो है ना उनको बताएं कि जो है ना तो दुनियावी एतबार से कुछ कम पढ़ ले, कोई मसला नहीं, लेकिन जो कुरान मुकम्मल तौर पर मजबूत रहे, तेरा नमाज मुकम्मल तेरी मजबूत रहे,
तुझे जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अच्छी तरह याद रहे। एक तालिब इल्म से मैं बात कर रहा था, मैं उसे कह रहा था कि जो है ना तुम जो है इस मर्तबा कुरान में जो है कैसे भी अच्छे नंबरात लाना है। तो उसका जवाब क्या है? जवाब क्या है? वो कह रहा है कि जो है ना अगर मैं दुनियावी तालीम में अच्छे नंबर नहीं लाऊंगा तो मेरे वालिदैन छोड़ेंगे नहीं, मेरे वालिदैन मुझे छोड़ेंगे नहीं। कुरान में अगर कुछ नंबर कम आ गए तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन दुनियावी तालीम में अगर मुझे कम नंबर आ गए तो मेरे वालिदैन मुझे छोड़ेंगे। ये जो है ना पैगाम हम हमारे बच्चों को दे रहे हैं। ये बात हम जो है हमारे हाल से और हमारी जुबान से जो है ना मुकम्मल तौर पर बच्चों को हम जो है पहुंचा रहे हैं ये बात कि जो है ना दुनियावी तालीम जो है ना सबसे अहम है। उसके बाद जो है ना दीन का दर्जा आता है, उसके बाद अल्लाह का कलाम, उसके बाद जो है ना कुरान, उसके बाद अहादीस। ये जो है ना हम हमारे बच्चों को मुकम्मल तौर पर पैगाम दे रहे हैं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तहरीम में क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचा लो। इस आयत की तफसीर में इमाम मकातिल और इमाम ज़हाक रहमहुल्लाह लिखते हैं कि जो है ना इसमें औलाद की तालीम और तरबियत भी शामिल है। गोया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर तुम अपने बच्चों को जो है हकीकत में जहन्नम की आग से बचाना चाहते हो तो दुनिया में उनकी अच्छी तालीम और तरबियत कर दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ ये नहीं कहा कि जो है ना तुम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर जोर दो, ये नहीं कहा, सीधे डायरेक्ट नतीजा बता दिया कि अगर तुम जो है ना उनकी तालीम और तरबियत से मुताल्लिक फिक्र नहीं करोगे तो क्या होगा? तुम्हें जो है ना उन्हें जहन्नम की आग में जलते हुए देखना पड़ेगा। मेरे भाइयों, यहाँ वालिदैन जो है अपने बच्चों को एक खरोच भी अगर आ जाती है तो बर्दाश्त नहीं करते, तो कल क़यामत के दिन जो है ना वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? अपने बच्चों को जो है ना जहन्नम के हवाले कैसे करेंगे? तो इस वजह से जो है ना ये एक वाहिद जरिया है, दीनी तालीम एक वाहिद जरिया है जो इंशाअल्लाह दुनिया में भी आपके बच्चों को मुकम्मल तौर पर आला से आला मुकाम पहुंचाएगी और आखिरत में भी मुकम्मल तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए जो है ना जन्नत का रास्ता आसान करेगा। तो इस वजह से जो है ना मुकम्मल तौर पर अपने बच्चों की दीनी तालीम का इंतजाम करें, दीनी तालीम का इंतजाम करें, क्योंकि यही तालीम जो है ना कल क़यामत के दिन भी और दुनिया में भी मुकम्मल तौर पर आपके बच्चों के लिए ढाल बनेगी, आपके बच्चों के लिए एक मुहाफिज बनेगी। मेरे भाइयों, आज ये सोच बन गई है वालिदैन की कि जो है अगर हम हमारे बच्चों को इस्लामिक स्कूल में डाल दे या फिर जो है हमारे बच्चों को हम एक मस्जिद के मकतब में डाल दे तो हमारी जिम्मेदारी खत्म, हमारी जिम्मेदारी खत्म। हमने जो है ना दीन के नाम पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। क्यों? हम जो है ना हमारे बच्चे को एक मकतब भेज रहे हैं या फिर हमने हमारे बच्चे को एक इस्लामिक स्कूल में दाखिला दिला दिया है। हम जो है ना एक बहुत दीनदार वालिदैन हैं। मेरे भाइयों, यहाँ हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, यहाँ हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि दीन के नाम पर जो है ना सिर्फ एक मकतब को भेज देना या स्कूल को भेज देना काफी नहीं है। ये स्कूल और मकातिब फैक्ट्री नहीं है कि जो है ना एक तरफ से आप अपने बच्चे को भेजे, मुकम्मल उसके अखलाक और जो है ना मुकम्मल उसकी जो है ना जो है तरबियत बुरी कर भेजे और जो है ना दूसरी तरफ से वो नेक बनकर निकल जाए। ये फैक्ट्रियां नहीं है, हमें भी मुकम्मल तौर पर मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों को जो है ना स्कूल भेज देने के बाद वालिदैन को भी उससे मुतालिक जो है ना खूब फिक्र करनी पड़ेगी, उनके माहौल को देखना पड़ेगा, अपने घरों के माहौल को देखना पड़ेगा। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा। हर बच्चा जो है ना फितरत पर पैदा होता है, उसके अंदर जो है ना कोई बिगाड़ नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब आपको बच्चा देता है तो उसके अंदर कोई मुकम्मल तौर पर साफ और शफाफ रहता है। वो बिगाड़ते हैं कौन? उसका माहौल बिगाड़ता है, उसे मुकम्मल तौर पर उसका माहौल बिगाड़ता है। तो इस वजह से जो है ना मुकम्मल तौर पर अपने बच्चों के स्कूल भेज देने के बाद, उनको दीनी तालीम का इंतजाम कर देने के बाद भी हमारा ये फरीजा है कि जो है ना हमारे बच्चों से मुतालिक जो है ना उनका माहौल मुकम्मल तौर पर देखें, उनका माहौल देखें कि उनका माहौल कैसा है, माहौल से उनके अंदर बिगाड़ आ रहा है या नहीं। ये मुकम्मल तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है। वालिदैन जो है सिर्फ जो है ना मदारिस और जो है ना मकातिब या फिर जो है ना स्कूल के हवाले करके जो है ना आराम से बैठ जाते हैं, इतनी ये चीज जो है ना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। उनकी जो है ना दीनी तालीम की तरक्की से मुताल्लिक खूब फिक्र करें, खूब देखें। और मेरे भाइयों, ये बात भी याद रख लीजिए, वालिदैन ये बहुत जो है बड़े बड़े दावे करते हैं कि जो है ना हमने हमारे बच्चों की जो है ना बहुत अच्छी तरबियत की है, हमारे बच्चों की हमने जो है ना बहुत आला तरबियत की है। मेरे भाइयों, याद रख लीजिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन वालिदैन भी अगर हैं तो उनकी तरबियत में भी इतनी ताकत नहीं कि वो बच्चों को सीधे राह पर रख सके।
सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम की में वो ताकत है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना अल्लाह के कलाम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है ना तालीमात जो है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो तकवा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो डर है, उसी में वो ताकत है कि जो है ना आपके सामने भी आपका बच्चा सही राह पर रहेगा और आपके पीठ पीछे भी आपका बच्चा सही राह पर रहेगा। सिर्फ आपकी तालीम में जो आपकी तरबियत में इतनी ताकत नहीं है, किसी वालिदैन की तरबियत में इतनी ताकत नहीं कि जो है कल जो है जब आप नहीं रहेंगे तब भी जो है ना वो सीधे राह पर रहे, ऐसी जो है ना हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। अगर आप हकीकत में अपने बच्चों को जो है आपके पीठ पीछे भी, अगर आपका बच्चा जो है ना ताक़ीम से भी आ रहा है तब भी आप जो है ना चैन की नींद सोना चाहते हैं, तो उसे जो है ना दीनी तालीम से आरास्ता कर दे, दीनी तालीम से मुकम्मल तौर पर उसे जो है ना सवार दे। यही एक चीज़ है जो मुकम्मल तौर पर बच्चों को क्या रखेगी, आपके पीठ पीछे भी आप नहीं है सामने तब भी जो है ना उनके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर रहेगा, उनके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ रहेगा। वो जो है ना बिल्कुल जो है ना सीधे रास्ते से बिल्कुल नहीं हटेगा। ये चीज़ हमें पैदा करने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को एक मिसाल देना चाहता हूँ कि दीनी तालीम जो है सिर्फ एक इंसान को नहीं, मुकम्मल मुआशरे को बदलने की ताकत रखती है, मुकम्मल मुआशरे को बदलने की ताकत रखती है। देखिए मक्के के हालात आप पढ़कर देखिए, मक्के के हालात जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले, दीन आने से पहले वहाँ के हालात पढ़कर देखिए, इतनी जो है ना हालात वहाँ के बुरे थे, इतने ज्यादा वहाँ के हालात जो है ना मुकम्मल तौर पर खराब हो गए थे कि जो है ना अखलाक का सबसे निचला दर्जा अगर आप देखना चाहते हैं तो मक्के की तारीख उठाकर पढ़ लीजिए। हर नाहिए से, हर नाहिए से, शर्म हया के नाहिए से, अखलाकियात के नाहिए से, मामलात के नाहिए से, लेन देन के नाहिए से, हर नाहिए से, हर नाहिए से जो है ना मक्के के हालात जो है ना मुकम्मल तौर पर तहस नहस हो गए थे। मेरे भाइयों, उसके बाद देखिए जैसे ही इस्लाम आया, जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आई, उनके हालात इतने ज्यादा बदल गए कि रात के अंधेरे में भी वो कोई गुनाह करने से मुकम्मल तौर पर पीछे हट जाते थे। और दुनियावी एतबार से भी आप देख लीजिए, सहाबा की कोई हैसियत नहीं थी। कब? इस्लाम आने से पहले दुनिया में भी कोई उनको नहीं मानता था, मक्के को जो है ना कोई भी नहीं मानता था। दीगर ममालिक के लोग जो है ना आकर मक्के को जो है ना मुकम्मल तौर पर लूट कर जाते थे, उनके अंदर कोई ताकत नहीं थी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दीन की वो ताकत थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दीन की वो खूबसूरती थी कि जो है ना जैसे ही वो दीन को उन्होंने अपना लिया, जैसे वो दीन को जो है ना उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, तो क्या हुआ, मुकम्मल तौर पर जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में भी उनको मुकम्मल कामयाबी अता की। और दूसरी चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है ना उनको दीनी एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी और जो है ना मामलात के एतबार से हर नाहिए से जो है ना उनके अंदर सुधार आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सिर्फ 30 साल की मुद्दत में पूरे दुनिया पर जो है ना सहाबा का राज, पूरी दुनिया पर जो है ना सहाबा राज कर रहे हैं। जो कल तक जो है ना अपनी कौम को जो है ना वो संभाल नहीं पा रहे थे, कल अपनी कौम को जो है ना वो जोड़ नहीं पा रहे थे, इतने ज्यादा टूटे हुए लोग जो है ना मुकम्मल जो है ना पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये वादा है, अगर हम दीन को लेकर चलेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी हमें कामयाब करेगा और आखिरत में भी हमें कामयाब करेगा। ऐसा नहीं कि जो है ना हम दीन पढ़ लेंगे तो दुनिया में एतबार से पीछे हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि जो है ना हम दीन पढ़ लेंगे तो जो है ना हमारे जो है ना घर जो है ना नहीं चलेंगे, ऐसा मामला नहीं है। हम दीन के साथ भी जो है ना मुकम्मल तौर पर कामयाब हो सकते हैं। ये सहाबा की मिसाल है, ये सहाबा की जो है ना ये मुकम्मल तौर पर जिंदगी मौजूद है आपके सामने कि कैसे ये सहाबा जो है ना कल जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दीन की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको कितनी कामयाबी अता की। तो इस वजह से जो है ना मुकम्मल तौर पर अपनी तरबियत से मुताल्लिक़ जो है सिर्फ ये ना कहें कि जो है ना हमारी तरबियत ही काफ़ी है, दीनी तालीम ही जो है ना बच्चों को सुधार सकती है। वरना फिर जो है ना बच्चे बिगड़ जाने के बाद उलेमा के पास आकर जो है ना वालिदैन क्या करते हैं कि जो है ना हमारी तरबियत में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से हमारा बच्चा हाथ से निकल गया, हमारी तरबियत में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से आज हमारा बच्चा इतना नाफरमान हो गया। यही कमी हो जाती है, यही कमी हो जाती है। हम जो है ना बच्चों के अंदर हमारा डर पैदा करना चाहते हैं, हमारा डर जो है ना सामने रहेगा, पीछे नहीं रहेगा, हमारा डर जो है ना बचपन में रहेगा, जवानी में खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ना अल्लाह का डर पैदा करे जो हमेशा हमेशा दायमी रहेगा। और मेरे भाइयों, अगर हम हमारी इस्लाह करना चाहते हैं और हमारे बच्चों की इस्लाह करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़ा जरिया ये भी है कि जो है ना मस्जिद से जुड़े, मस्जिद से जुड़े।
اللہ کے گھر سے جڑے. اگر اللہ کے گھر سے اگر آپ جڑ جائیں گے تو آپ کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور بچوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی. دیکھیں نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے متعلق قرآن کیا فرماتا ہے، تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر جو ہے نا، اگر آپ کا بچہ